So today we will discuss geometric progression. This is a special type of sequence. So before we discuss the proper sequence, first of all definition. Geometric progression we will denote it by GP is a sequence in which each term except the first, underline the word except the first, is obtained by multiplying a fixed number to the term preceding it. So here we have two things to mention. So fixed number, preceding term preceding it. For example समझो अपने पास सीक्वेंस है और फर्स्ट टर्म है A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल अपने पास सीक्वेंस है. सो व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है. दिस इज सीक्वेंस in which each term except the first term because पहली टर्म तो उस तो पहला अपने को पास कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए फर्स्ट टर्म तो ऐसा च रहेगी. पहली टर्म ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਾਕੀ ਟਰਮਸ ਕੈਨ ਬੀ obtained by multiplying a fixed number to the term preceding it. to the preceding means ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਫॉर एग्जांपल A2 अपने पास टर्म है. वी कैन obtain second term how? by multiplying a fixed number to a term preceding it. A2 तो preceding term ਕਿਹੜੀ ਹੈ? A1. अगर A1 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ, we have a fixed number, अगर ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ A2 ਆ ਜਾਏਗਾ. ਹੁਣ A3 ਤੋਂ preceding term ਕਿਹੜੀ ਹੈ? A2. ਸਿਮਿਲਰਲੀ A2 ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਫਿਕਸ ਰਹੇਗਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ A3 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, A4 ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ A3 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਵੀ ਵਿਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਨੰਬਰ ਟਰਮ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ A4 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? A3. A4 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸੇ ਸੇਮ ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ A3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? A4 ਆ ਜਾਏਗਾ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ A5 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਾਸ A4 ਹੈ. ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸੇਮ ਟਰਮ ਵਿਦ A4 ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ A5 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ. ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ GP. ਫॉर एग्जांपल अपने पास फर्स्ट टर्म है मान लो 1, ਆਪਾਂ मल्टीप्लाई करांगे फिक्स नंबर. मान लो फिक्स नंबर इज से 2. फिक्स नंबर इज अज्यूम कर लो इट इज 2. अगर अपने पास फर्स्ट टर्म है 1 तो सैकेंड टर्म किमें आएगी? फर्स्ट टर्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो अपने पास आ जाएगा सैकेंड टर्म. अगेन थर्ड टर्म किमें फाइंड आउट करांगे? वी विल मल्टीप्लाई अगेन विद सैकेंड टर्म बाय 2 तो अपने नवी टर्म की आ जाएगी 4. फिर अगली टर्म फाइंड आउट करना से की करांगे आप फिर 4 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करेंगे विद 2 ਨਾਲ आ जाएगा 8, फिर 16, फिर 20, 32 एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल वी हैव से फर्स्ट टर्म इज this first example, second example. first term assume that it is say -2/3 और fixed number is say over 3. तो क्या आएगा? इन 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो आएगा -2. अपनी सेकेंड टर्म आ गई. इसमें फिर 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे इट बिकम्स योर -6 -8
18 minus 54 and so on. In this way you will get a sequence. इस sequence ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ geometric progression. इस sequence एक चीज याद रखियो, इस geometric progression this sequence may have finite terms, this sequence have finite term or it may also contains infinite terms. अगर sequence finite terms ने then we will say this is a finite sequence, अगर उस sequence infinite terms ने then we will say it is infinite sequence. एक चीज याद रखनी है, very important thing to note that none of ans is 0. कोई भी टर्म अपनी इसमें कोई भी 0 नहीं होएगी. क्लियर. सो एक चीज और देखिए ध्यान नाल, मान लो लेट करो, लेट our first term is a, we are denoting the first term by a, जो फिक्स नंबर है and fixed number is denoted by say by r. assume कर लो फिक्स नंबर है थोड़े पास r. तो सीक्वेंस किवें मिलेगी, तो फर्स्ट टर्म अपने पास a है, अपने पास इट इज अज्यूम्ड a. तो सेकंड टर्म अपने पास किवें आएगी, बाय डेफिनेशन सेकंड टर्म किवें आएगी, फर्स्ट टर्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾय द सेम फिक्स नंबर. सो आवर सेकंड टर्म इज ar because first term is a. सिमिलरली थर्ड टर्म किवें आएगी, थर्ड टर्म ਆਪਾਂ कह सेकंड टर्म ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ उस फिक्स नंबर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो अपने पास थर्ड टर्म आ जाएगी. सिमिलरली फोर्थ टर्म की आएगी, थर्ड टर्म ਨੂੰ we multiply by the same fixed number. Similarly fifth term is multiply the fourth term by fixed number and so on. In this way we will obtain all the terms of the sequence. ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ over a2 is equal to a1 into r. So this implies what is the value of a2 by a1, it is equal to r. Similarly what is the value of a3 by a2, a3 by a2 it is r. Similarly a4 by a3 again it is r. Similarly from here a5 upon a4 it is r. So this implies a2 by a1 is equal to a3 by a2 is equal to a4 by a3 is equal to a5 by a4. ये सारी वैल्यूज की आ रही ने r के बराबर आ रही ने. r की से अपने पास फिक्स नंबर, बट वाज फॉर r इट वाज फिक्स नंबर. ध्यान नाल देखो की हो रहा है, r इज द रेशो ऑफ a2 by a1, दूजी है पहली टर्म का, r आल्सो तीसरी है दूसरी टर्म की रेशो, चौथी है तीसरी टर्म की रेशो, फिफ्थ और फोर्थ टर्म की रेशो एंड सो ऑन. इट मीनस टर्म और पिछली टर्म की रेशो की होएगी वो फिक्स नंबर होएगा, बिकॉज सो इट सेम रह रही है, इट इज रिमेन सेम. दैट्स व्हाई दिस r इज कॉल्ड कॉमन रेशो, इट इज कॉल्ड कॉमन रेशो, क्योंकि यह r की वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी. एक ही आएगी रेशो ऑफ टर्म एंड इट्स प्रोसीडिंग टर्म, सो इट इज कॉल्ड कॉमन रेशो. So note is, it is very important note, to find a geometric progression we need, ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. We need, first thing is the first term we denote it by a, and second जिस की जरूरत पड़ेगी अपन that is common ratio. अगर अपने पास ये दो चीज़ों की आइडिया है, दो चीज़ों बारे अपन पता है, then we can find a geometric progression. So we need only the first term and r, because पहली टर्म अपने पास a है,
दूसरी टर्म किवें आएगी, उस ए ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਈ ਆਰ ਨਾਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਥਰਡ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੋਰਥ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਪੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਫਸਟ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਰ। ਨਾਓ ਜਰਨਲ ਟਰਮ, ਜਰਨਲ ਟਰਮ, it is very important term. So assume karo, let A be the first term, first term of GP, and R be the common ratio. R आप assume कर ले, it is common ratio. So then we know by the definition how you will get the value of A2. A2 ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, A2 ਤੋਂ preceding term ਕਿਹੜੀ ਹੈ, A1, A2 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, A1। ਅਗਰ preceding term ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ R, we because our fixed number is R and we denote and we will say this fixed number R as a common ratio। अगर आप A2 तो प्रोसीडिंग टर्म है A1, अगर आप उसको R ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दिए तो अपन A2 मिल जाएगा। एंड इट मीन्स when we know what is first term, we denote the first term by A, so A into R। Similarly third term, थर्ड टर्म ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, थर्ड टर्म तो प्रोसीडिंग टर्म ਕੀ ਹੈ A2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ R ਉਸੇ ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ R ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਥਰਡ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਫਰੋਮ ਅਬਵ what is the value of A2? A2 is AR, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ R ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ AR ਸਕੁਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ A4 ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਟਰਮ A3 ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, आ जाएगा। वट इज़ A3 का है फार्मूला अपने पास AR स्केयर, आप ऊपर ही फाइंड आउट किया, इनू R ना मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा AR रेज़ टू पावर 3। सिमिलरली ये पंजवीं टर्म, ये आ जाएगा फोर्थ टर्म इंटू R, फोर्थ टर्म इज़ AR क्यूब, इसनू फिर R ना मल्टीप्लाई करांगे तो R की पावर कितनी हो जाएगी, 4, एंड सो ऑन। So listen, अगर अपने पास इतने 2 है, द पावर ऑफ R इज 1, अगर इतने A3 है, द पावर ऑफ R इज 2, अगर इतने 4 है, द पावर ऑफ R इज 3, एक हमेशा कट रही है, ध्यान देखो। अगर इतने 5 है, द पावर ऑफ R इज 4। तो सिमिलरली अगर अपने पास AN है, देन व्हाट इज द टर्म AR, एक पावर कटेगी, इट बिकम्स योर n-1। सो अपने पास फार्मूला है जर्नल टर्म फाइंड आउट करने का, इट इज फार्मूला फॉर जर्नल टर्म। जर्नल टर्म कह लो या तुम कह लो nth टर्म। So we can also denote terms by say T1, T2, T3, चौथी टर्म T4, फिफ्थ टर्म T5 एंड सो ऑन। आप पहले किस ने डिनोट किया A1 नाल, A1, A2, A3, A4, मीनिंग इज सेम, चाहे तुम T की फॉर्म च रिप्रजेंट कर लो, चाहे ए फॉर्म च रिप्रजेंट कर लो, मीनिंग इज सेम। तो अपने पास nth टर्म फाइंड आउट, लास्ट nth टर्म फाइंड आउट करने की फार्मूला अपने पास आ गया A इज फर्स्ट टर्म into R the power n-1। so this is the journal formula, एक चीज ध्यान नाल देखो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, call this equation number 1। इक्वेशन 1 दे रहा है तो जर्नल टर्म। दिस इक्वेशन 1 contains how many terms?
इस फार्मूले एक कितने टर्म्स हैं तुहाडे पास? फर्स्ट टर्म किहड़ी अपने पास ए, फिर अपने पास आर, एक एन है, एक ए एन है। सो नोट करो द फार्मूला वन contains 4 quantities। किहड़ी क्वांटिटीज ने? ए आ रहा है, इस एक आर आ रहा है अपने पास, एक एन आ रहा है, एक ए एन आ रहा है। इट इज़ nth टर्म। तो इट मीनस इफ एनी थ्री, अगर इन्हें तिना चो चारा चो अगर 3 चीज़ अपन नोन ने तो चौथी वी कैन फाइंड वेरी इजीली। सो इफ एनी थ्री आर नोन, then fourth quantity can be found। अगर सिर्फ 4 चों 3 तुहानू चीज़ां अगर नोन है तो वी कैन फाइंड द फोर्थ टर्म। फॉर एग्जाम्पल the first term of GP is, GP means geometric progression, is 1, the sum of third and fifth term, sum of third and fifth term is 90, then find common ratio R, So solution, check करो की क्वेश्चन नोन है। द फर्स्ट टर्म इट इज गिवन टू यू 1, तो आप फर्स्ट टर्म किस नाल डिनोट करते हैं? ए नाल। सो व्हाट इज गिवन इज योर फर्स्ट टर्म ए इज योर 1। की क्या है तुहानू अगे? सम किस दा? थर्ड टर्म दा, एंड फिफ्थ टर्म दा वो की अपने पास? इट इज 90। सो इट मीनस सम ऑफ थर्ड टर्म अते फिफ्थ टर्म दा जो सम है इट इज 90। सो इट इज आल्सो गिवन टू यू। सो अज्यूम करो लेट आर बी द कॉमन रेशो, क्लियर? कॉल दिस एज ए इक्वेशन नंबर 1। ताकि जर्नल फार्मूला किस अपने पास? वी नो द जर्नल फार्मूला किस अपने पास? ए एन इज इक्वल टू ए आर दी पावर एन माइनस 1। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अगर इत्थे n है, हियर वी हैव n माइनस 1, अपन किस चीज़ की जरूरत है? A3 की जरूरत है, A5 की जरूरत है। सो पुट n एज ए 3। इत्थे n है देन n माइनस 1, इफ यू टेक n एज ए 3 इट बिकम्स a r दी पावर 3 माइनस 1 a r स्केयर। सो दिस इज अ फार्मूला फॉर A3। सिमिलरली वी नीड A5 किमें आएगा? इतने अगर 5 है तो 5 माइनस 1 4 बन जाएगा, आर दी पावर 5 माइनस 1 इट बिकम्स ए आर दी पावर 4। सो ये दोनों पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो की बन गया अपने पास? A3 का फार्मूला क्या अपने पास? ए आर स्केयर प्लस ए आर दी पावर 4 इज इक्वल टू 90। ए दी वैल्यू कितनी से अपने पास? इट इज़ 1। तो 1 इंटू आर स्केयर प्लस 1 इंटू आर दी पावर 4 इट बिकम्स योर 90। सो की बन गया अपने पास? आर दी पावर 4 प्लस आर स्केयर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। हुण आपां इसनूं इक्वेशन नूं सोल्व करांगे, सोल्व करके आपां आर दी वैल्यू फाइंड आउट करांगे, वही अपना आंसर होएगा। सो किवें सोल्व करोगे? दिस इज इक्वेशन जिसकी डिग्री है 4। पहला इसनूं कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिसकी डिग्री 2 होएगी। सो फॉर दिस अज्यूम कर लो लेट आर स्केयर इज इक्वल टू से एक्स, ताकि बन गया अपने पास एक्स स्केयर
प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इट बिकम्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्हें सोल्व करो तो सोल्व कर की बनेगा, इस फैक्टर की बनेंगे x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इथों एक्स की वैल्यूज आ गई अपने पास, x बिकम्स योर 9 एंड माइनस 10। वट वाज x? r स्क्वायर। इट बिकम्स सो r स्क्वायर, x की से अपने पास r स्क्वायर, ये बन गया 9 जहाँ r स्क्वायर अपने पास आ गया माइनस 10। ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज r स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी इक्वल टू ए नेगेटिव टर्म। सो ये रिजेक्ट कर देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं अपने पास, रिजेक्ट कर दो। तो r अपने पास की बन गया r स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9। सो r अपने पास की आ गया, एक 3 आ जाएगा, एक माइनस 3 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। ये अपने पास आंसर आ गया है। दिस इज द फार्मूला फॉर कॉमन रेशियो आर। हम चेक भी कर सकते हो बिकॉज ए तुहानू पता है ए इज 1 गिवन टू, आर भी अपने पास नोन है इट इज 3 एंड माइनस 3। दो सो वी कैन फाइंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सो व्हाट इज, सो केस नंबर 1, व्हेन आर अपने पास अज्यूम करो 10 है, ए अपने पास की अपने पास ए गिवन टू यू इट इज 1। तो जीपी की बनेगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म की भी आएगी, उसको मल्टीप्लाई करो बाय फिक्स नंबर 3। नेक्स्ट टर्म की आएगी, फिर 3 मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स योर 9, फिर 3 मल्टीप्लाई करो 27, 81 एंड सो ऑन। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म की क्या है इस स्टेटमेंट, थर्ड अते फिफ्थ का सम 90 है, 90 भी बन गया अपने पास। सो केस 2 देखो, जो अपने पास r है -3, ए तो अपने पास फिक्स है इट इज 1, तो उनकी ज्योमेट्रिक्स जीपी बनेगी, इट इज जीपी। नाउ हेयर जीपी विल बी फर्स्ट टर्म इज 1, ओके, फिक्स नंबर की अपने पास -3 मल्टीप्लाई कराएंगे इट बिकम्स योर -3। नाउ मल्टीप्लाई -3 इट बिकम्स योर 9 इंटू -3 मल्टीप्लाई करोगे -27, -3 मल्टीप्लाई करोगे 81 एंड अगर और -3 मल्टीप्लाई करोगे -243 एंड सो ऑन। चेक करो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ और फिफ्थ अगेन सम जो है वो 90 ही बन रहे। तो इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज ओके। सो वन मोर एग्जांपल स्टेटमेंट इज फाइंड GP for which sum of first two terms is -4 and fifth term is 4 times the third term। सब तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीपी, फाइंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, फाइंड जीपी। द फाइंड जीपी मींस तुसी ए फाइंड आउट करना विच इज द फर्स्ट टर्म एंड वी नीड आर विच इज कॉमन रेशियो। इट मीन अगर बिकॉज अपन पता है वी कैन राइट ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ a ਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਟਰਮ ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਆਈਡੀਆ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੀਓ r। ਸੋ gp ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ a ਐਂਡ r। ਸੋ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਫਸਟ ਟਰਮ a ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੀਓ r। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਸੋ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ फर्स्ट टर्म ए है अपने पास ए, कॉमन रेशियो वो अपने पास है मान लो आर। व्हाट इज गिवन यू, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स
फर्स्ट टू टर्म इज -4 की गिवन है, गिवन इज sum of first two term, first term and second term, it is given to you, it is -4. फर्स्ट टर्म की अज्यूम किया तुसी a, सेकंड टर्म किवें आएगी, वी नो दैट अगर पहले उस a2 तो पहली टर्म की है a1, इफ यू मल्टीप्लाई द प्रीसीडिंग टर्म बाय r वी विल गेट a2, सो ये की बन जाएगा a r, इसकी वैल्यू देती तुहानू -4, कॉल इट एज ए इक्वेशन नंबर 1. और की क्या है तुहानू फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इज 4 गुना है थर्ड टर्म, दैट मीन्स a5 गिवन टू यू 4 टाइम द थर्ड टर्म. अपने पास जर्नल फार्मूला क्या, अपने पास जर्नल फार्मूला इट इज an इज इक्वल टू a r दी पावर n माइनस 1. यूजिंग दिस फार्मूला अगर n नू 5 पुट करोगे तो की बन जाएगा फार्मूला a r दी पावर 5 माइनस 1 4 इज इक्वल टू 4. अगर n नू 3 पुट करोगे ये फार्मूला की बन जाएगा a r दी पावर 3 माइनस 1, इट बिकम्स योर 2. ए नाल ए कैंसल हो गया अपने पास, इतने पावर r दी है 2, ये r दी पावर है 4, जो इधर आके डिवाइड करांगे इसनू तो की बन जाएगा r दी पावर 4 इज इक्वल टू 4. तो व्हाट इज वैल्यू 4 अपॉन r स्केयर, इट मीनस r स्केयर की वैल्यू की अपने पास आ गई, इट इज़ 4. इट मीनस r की हो सकता है अपने पास ज़्यादा +2 होएगा या -2 होएगा. तो एक चीज़ अपने मिल गई r, एटलीस्ट एक चीज़ मिल गई अपने पास r. सो नाउ वी हैव दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हम अगर इस इक्वेशन अगर अपन r नोन है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. सो वी हैव 2 केसेस. सो केस फर्स्ट की है जो अपने पास r है when r is equal to 2, put this value in equation number 1, put this value in equation number 1. equation number 1 किस अपने पास a plus ar is equal to -4, तो क्या बनेगा a plus ar, r कितने अपने पास 2 is equal to -4, तो 2a है a है, एक बन गया अपने पास 3a is equal to -4, तो a कितना अपने पास आ गया -4/3. केस 2, व्हेन r अपने पास है -2, पुट कर दो सेम वैल्यू, पुट इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 किसी की a प्लस ar, r कितना अपने पास नाउ -2 इज इक्वल टू -4, ये बन गया -2, ये है अपने पास a, तो क्या बन गया -a इज इक्वल टू -4, तो इट मीन्स a की वैल्यू कितनी अपने पास आ गई 4. तो देयरफॉर जदों अपने पास r है 2, a अपने पास है -4/3, जदों r है अपने पास -2, a बन जाता अपने पास 4. तो ज्योमेट्रिक सीरीज की जीपी की बनेगी पहले केस लिए a कितना अपने पास -4/3, इन्हों मल्टीप्लाई करो बाय 2 नाल कितना बन जाएगा -8/3, और मल्टीप्लाई करो बाय 2 नाल इट बिकम्स योर -16/3 -32/3. दो जो कॉमन रेशियो है 2 उन्होंने बार बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म आती जाएगी. सैकेंड टर्म की अपने पास सैकेंड जीपी की आएगी. हम फर्स्ट टर्म कितनी अपने पास 4, फर्स्ट टर्म अपने पास 4, कॉमन रेशियो कितना अपने पास -2 मल्टीप्लाई करो -8 -2 मल्टीप्लाई करो 16 -32 64 एंड सो ऑन. सो अपने पास ये दो जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया. सो वन मोर क्वेश्चन एग्जांपल विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि गिवन है अपन इफ pth term, qth term and rth term of a GP are x, y and z. दोनों क्या है जी p टर्म है x है, y टर्म z है y है, qth टर्म y है एंड rth टर्म इज z. देन शो करो x raised to power q minus r into y raised to power
r माइनस पी एंड z रेज टू पावर p माइनस q, ये होएगा 1. ओके, सो सोल्यूशन लेट कर लो a जो है विद द फर्स्ट टर्म, आप हमेशा कॉमन रेशियो ਨੂੰ स्मॉल r ਨਾਲ डिनोट करते हैं बिकॉज स्मॉल r ऑलरेडी यूज हो रहे हैं. सो लेट कर लो, लेट कैपिटल R बी द कॉमन रेशियो.